Hey guys, welcome to the Astrix Show, and I'm your host Gargi Priyadarshini Das and audio slave aka Anirban Pal in the house. So sir, Hi. could you please tell us a bit more about yourself? Like you have said the name. My name's Audio Slave. That's my stage name actually, and the name is inspired from a rock band. There used to be a band. The name was Audio Slave. I'm afraid they're not anymore into existence, or like they stopped making music. But I also didn't know about that band a lot when I took the name. I didn't mean to copy या फिर ऐसे imitate नहीं करना था मेरे को. But that name just sounded something right with my life and what I'm trying to do. So that's why Audio Slave, yeah. Right. So why didn't you want to work as a DJ? Wow. So it was a sudden plan, or you wanted it from No, that also has an entire story. I was never good at academics, I'll be real honest. And I'm never ashamed of admitting that fact. So when I was back in 6th grade, I did my schooling from Bhubaneswar only. So before entering music, before entering art, I was into sports actually. I was into sports. So this is dates back to 2010 FIFA World Cup, and that is मतलब पहली बार मैंने मेसी को देखा था on screen, and yeah, I can try football because somewhere I believe that me at that time I had this vision which no one else had, or I don't know if some people had or not, but I already somehow foresaw things that are coming in my way in my life. So from that time I decided to just chuck academics, and I just wrote exams for the sake of passing and getting a certificate or getting a degree or whatever it mattered. But back at that time I kind of wanted to hone my skill set. मेरे को कुछ अलग करना था, and I didn't want to stop at one thing. So I started playing football, and I continued till around 12th grade. Yeah, I was playing football, and in between football also I did swimming for 2 years. And I represented Odisha at the national levels also. And by the time I was in 10th, there's this rough time that happened with me. My dad expired, and that was actually a bad time for me, for my family. I have a younger brother, I have a mom, and I was very puzzled for a duration of time. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना है. And I was a little bit getting into art. I started beatboxing first, like the art of making music just from your mouth. तो मैंने पहले वो start किया था. And then I didn't come across any DJ as such. मतलब मैंने कभी ऐसे live performances नहीं देखे थे, कुछ नहीं किया था. And as a musician back then, the only access we had was internet. हमारे पास उतना hardware नहीं था. We didn't have a lot of software resources, or I didn't have the privilege of going into studios and meeting big artists and जो भी नामी दामी artists है उस time के and अभी भी. तो all I had was YouTube, and I used to read a lot of books back then. मतलब comics पढ़ता था, and my dad got me encyclopedias, वो पढ़ता था मैं. तो one thing I realized was कि comic book सिर्फ आप just for the entertainment आप नहीं पढ़ना चाहिए आपको. You always get to take away something or the other. Novels पढ़ते थे आप? No, I never read a novel. But I personally believe that inspiration आपको कहीं से भी मिल सकता है. Might be living, it might be non-living. So I don't know, I was actually going in the right direction. ये मेरे को कोई बताया नहीं था, and I didn't have a mentor back then. ना ही अब मेरा कोई mentor है. I was completely self-taught. I am completely self-taught. So when I was in standard 12th, I used to do a few performances in school. मैं beatboxing करता था on freshers and farewells and maybe Teachers Day या Children's Day पे अगर ऐसा होता था. So by the end of 12th grade, I had made up my mind that sports बीच में छूट गया था because I had to give some time to acad, because 10th and 12th को pass तो करना पड़ेगा ना. I have no shame in admitting I got a 62 in 10th and around some 65 in 12th.
बट बाद में मेरे को पता चला कि ये उतना मैटर नहीं करेगा, बिकॉज लाइफ में वही चीज़ मैटर करता है जो मतलब यू नो व्हाट यू अक्वायर. नो ऑफेंस हियर बट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ना तुमको सिर्फ पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं. दे वॉन्ट एजुकेट यू, दे वॉन्ट टीच यू हाउ टू लीड लाइफ. वो स्कूल्स कॉलेजेस से नहीं हो पाता वो सब. इवन इफ़ यू नो गो टू स्कूल्स, गो थ्रू द सिलेबस एंड जो बुक्स रेफर करते हैं वो लोग, यू नो नथिंग मच ऑफ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. डिग्री मिल सकता है उधर से ज़्यादा डिग्री मिल सकता है उधर. that's the only thing. मतलब once you are out of school, आपने एक बार 10th पास कर लिया, what's the usual question that society asks you? कितना परसेंटेज आया? What's your future plans? No one asks about what side hustles did you have or hobbies क्या थी, ये कोई नहीं पूछता है. एंड लाइक अगर परसेंटेज भी खराब आया इन केस, देन नोबडी आस्क्स कि लाइक क्या मतलब बैक स्टोरी क्या था, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड. सबको यही होता है कि अरे तेरे को इतने ट्यूशंस भेज दिए, ये सर के पास भेजा, वो सर के पास भेजा, बट तूने ऐसा रिजल्ट लाया वैसा रिजल्ट लाया. नो वन रियली, मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, आई डोंट मीन टू ऑफेंड देम, बट नो वन रियली यू नो डेप्थ तक कोई क्वेश्चनिंग करता नहीं था. तब उनको बस इतना था कि ये सर के पास भेज दो, इसके इतने मार्क्स आ जाएंगे, इसको ये ट्यूटोरियल में डाल दो, इसके इतने नंबर आ जाएंगे. बट दैट नेवर सफाइस्ड. एंड थ्रू आउट माई जर्नी आई वॉज अलोन. मैं जब स्टार्ट किया एंड वो एक फेज आता है व्हेन आई वॉज ग्रोइंग, व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो कि हाँ लाइक दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग डिफरेंट. मेन स्ट्रीम ये नहीं कर पाता है. मतलब क्या होता ना, आपको कोई जॉब दे देगा, they'll say work from home and they'll give you around let's say 60 to 80K per month. तो आपको क्या होना है, you know this becomes blank. आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी, अरे मेरे को तो महीने में इतना पैसा आ रहा है घर बैठे, why do I need to do something else? Exactly. तो in my perspective, जितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो गया ना, वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं जीता है. then they never stay in the comfort zone. It's always be, मतलब हमेशा वो भूख रहता है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है. How do I get out of this? How do I get out of that? Right. तो that's how I started. मतलब ये सब चीज़ मैं दिमाग में लेके स्टार्ट किया कि I won't care what society tells me, what my parents tell me, या फिर my friend circle, my batchmates, जो भी वो थे मेरे आसपास लोग थे. And I had to disappear actually. मैं गायब हो गया था. गायब as in I was completely laying low. एंड दुनिया को लग रहा था मैं कुछ कर नहीं रहा था, बट मैं अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम करता रहता था. एंड इवन टिल डेट मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. अदरवाइज यू वोंट सर्वाइव इन दिस मार्केट, यू नो. बैक देन इट वाज अ डिफरेंट जनरेशन. द यूजुअल माइंडसेट वाज यू टेक एडमिशन इन स्कूल, तुम 10th पास कर जाओ, यू डू अ 12th, यू डू एन अंडरग्रेड, यू डू अ पोस्ट ग्रेड, यू गेट अ जॉब, यू गेट मैरिड, यू सेटल. दैट वाज द यूजुअल, यू नो, द सर्कल, द साइकिल एग्जैक्टली. तो in this generation, you know, we need more of chain breakers. ये चेन को तोड़ना है. हाँ, right. Because अभी के डेट में ना there's 1001 ways to earn legal white money, which no one talks about. कोई बात ही नहीं करता. आर्ट से आजकल लोग इतना पैसा कमा रहे हैं. You know, they are minting money. And they are satisfied. उनको हमेशा यही रहता है कि do what you love and earn money. तो उसमें अलग ही मजा है. You know, that dopamine hits in a very next level. तो I always stay in this zone. मेरा mindset यही है, you know, I kind of hardwired myself and I never let any other मतलब person या फिर कोई भी इंसान होगा influence me. मैं allow ही नहीं करता, मैं उतने radius में उनको आने ही नहीं देता. कि whenever I see red flags, either you cut them off or you just, you know, go away yourself. Don't let such people near you. मतलब your dreams can't come true if you do that. Okay, like if I talk about singing and vocals and the career you are in, DJ and beatboxing, I don't think there is much craze for it in India. Like, देखो अभी तो ऐसा क्रेज नहीं है. Like we can't exactly call it a craze, but you know, somewhere someone or the other is working day and night. कोई कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का ट्राई कर रहा है. And like it's a very sensitive thing जो मैं अभी बोलने वाला हूँ. If you are doing an art form that is contributing to the Indian culture, तो मतलब I don't care लोग अभी क्या रिएक्ट करेंगे इस पे, बट द हार्ड ट्रूथ इज, अगर तुम लोग कुछ ऐसा कर रहे हो ना जो इंडियन कल्चर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन तुम लोगों का अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिल जाता है. You know, you get called for Odissi dances and you know all the other things, Hindustani vocal, Indian instruments,
and everything. But अगर वही same चीज़ if you compare it with DJs, kind of play a different music. Like there's around 400 some genres of music that exists. Like मैंने जितना पढ़ा है, and I'm into some of them like techno, house, deep house, progressive house. Again, like that's just the subgenres. EDMs, there's psytrance, there's high tech. ये सब genre इंडिया में अभी इतना वेलकम नहीं हुआ है. There's only particular sections of people जो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो मतलब मान लो कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो देखो अभी लोगों का भी गलती नहीं है ना. दे ग्रू अप विद दैट माइंड सेट, दे ग्रू अप अराउंड, मतलब वो जो देख के बड़े हुए हैं वो वही करेंगे. यू कांट चेंज दैट फैक्ट. यू कांट चेंज. व्हाट यू कैन डू, द लीस्ट यू कैन डू इज मेक देम अवेयर. True. Like beatboxing has a really good relation. There's this Indian art form. It starts with K. I'm unable to recall the name. That is actually a form of beatboxing. It's some con करके कुछ तो है, KON करके. I'm not able to recall it right now. But आज भी मैं अगर कहीं जाता हूँ beatboxing करने, the crowd is, it's very very small. Small as in college fest में आप करो, people can relate. Schools में आप करो, people can relate. Maybe at some open mics में आप करो, people can relate. But if you go for bigger audience, then Bigger audience जैसे these government departments, they have annual day functions and उत्कल दिवस में कोई कुछ करता है. they'll not accept. नहीं, accept करने का बात नहीं है, उनको उतना आसानी से समझ नहीं आएगा. They'll be puzzled at what you are doing. They won't be able to relate to Exactly. it. Because they didn't grow up listening to Western music. हम लोग को millennials क्यों बोलते हैं? Like the people from the 2000s, हमको millennials क्यों बोलते हैं? We saw the old generation, हमने बीच में transition देखा, and now we are going ahead to the new gen. अभी there's this word वो बहुत जन यूज़ कर रहे हैं, it's called Gen Z. Oh, right. मतलब they are not able to give it any number. तो Gen Z बोल दे रहे हैं कि ये generation को आप कुछ भी दे दो, ये लोग accept कर लेंगे. And so मतलब मतलब scope नहीं है. As in first thing is if you are entering into art in a very professional manner, तुमको पहले market को study करना पड़ता है. You have to study the people, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, what are people craving for more. अभी जैसे for example I beatboxed at let's say 3-4 colleges and out of them 3 या 4 colleges में मेरे को बहुत अच्छा response आया, तो मैं वहाँ पे वो continue करूँगा. Maybe I'll add some variations or something else like that, but I won't stop there ना. Yeah. Recently you went to NIT Rourke, I guess. Yeah. वहाँ पे गया था मैं. Like apart from beatboxing I do MCing also. It's called MC, the spelling is EMCEE, where you usually host hip hop battles, dance battles हो गया, rap battles हो गए. So that is again another thing that's been contributing. तो वो community अभी बहुत मतलब it's growing very rapidly. This underground battle scene, it's growing very rapidly. ओडिशा में dancers हैं, and ओडिशा के ऐसे जगह जहाँ पे तुम नाम भी नहीं सुने होगे. There's people from Bhubaneswar, there's people from कंधमाल करी गोटे जगह अच्छी, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं. दे आर गेटिंग इनटू हिप हॉप एंड दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. एंड द बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगता है कि दिस थिंग इज प्योर. ऑफ कोर्स मतलब इंडस्ट्री में आप कुछ भी ऐसे लेके आओ या फिर यू गिव इट आउट, कहीं ना कहीं तो मतलब वो हो जाएगा ना, अनफेयर मीन्स हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा. दैट इज इन एवरी सेक्टर, दैट इज इन एवरी इंडस्ट्री. आप कोई भी जगह पे चले जाओ. बट द थिंग दैट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि ये लोग रुकते नहीं हैं. दीज गाइज हैव समथिंग इन देम. ये लोग रुकते नहीं है. दे आर ऑलवेज मतलब ट्रैवल करते हैं, बैटल्स अटेंड करते हैं, तो वो चीज़ है. सो नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन, वो एक पॉइंट के बाद ना खुद को सोचना पड़ता है, अरे यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, व्हाई एम आई नॉट एबल टू केटर टू दी ऑडियंस. वो चीज़ है. एंड लाइक और एक सजेशन दूंगा मैं, ऑल दी अपकमिंग आर्टिस्ट एंड जितने भी जन हैं, लाइक एनी आर्ट फॉर्म यू परस्यू दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. एंड वहाँ पे तुमको कोई रोक टोक नहीं है. बस इतना चीज़ रहना चाहिए कि इफ़ यू स्टार्टेड समथिंग यू बेटर फिनिश इट. इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट. वो बीच में बहुत कुछ आता है, तो अगर अभी मैं सब कुछ बोल दूंगा तो वो लोग खुद से कुछ सीख नहीं पाएंगे. So I have a question which is a bit out of the blue. You have really cool tattoos. Okay. Can you explain like what exactly it means, or you just did it randomly because you like the design? नहीं. Every tattoo of mine is related to music, universe and my life. And I don't know if this is correct, but मेरे साथ ये हुआ था कि I got my first tattoo over here on the neck, on this side, and this was the second one again on the neck.
द थर्ड वन वाज अगेन ऑन द नेक, देन ये जगह फुल हो गया था, तो आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन हैंड्स. तो हाउ टैटूइंग, मतलब मैंने कैसे ये स्टार्ट किया, आफ्टर माई डैड एक्सपायर्ड, यू नो, आई वेंट इनटू दिस ब्लैक जोन. You might call it depression, you might call it anything else. So I started googling stuff, how do you get out of it, and the usual answers were antidepressants and go to therapy and stuff like that. तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा पढ़ा कि you know, if you turn emotional pain into physical pain, if you just you know get that transition in your body, you know, it works. तो मेरे को जब भी दिमाग में वो सब चीज़ ज़्यादा मेरे को सताता था, I just used to go, I get a tattoo and I come back. मेरा वही लॉजिक है, and every tattoo here means something, you know, they have deep meanings. तो some do it for fashion, some do it for some other purpose, but my purpose अभी तक तो यही है. Like I recently got a tattoo on my chest also. So it's again converting that physical pain into mental pain into physical pain. मैं तो वैसे ही देखता हूँ, like that's my mindset. Okay, so like, would you like to give some suggestions ki how to polish your skills and something? See, polishing skills. Okay, अभी मान लो अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, जो स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाया होता है. हाँ. स्कूल में तुमको पढ़ाएंगे कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, एंड कॉलेज में तुमको पढ़ाएंगे नौकरी कैसे करना है. इट ऑल कम्स डाउन टू जस्ट दीज टू थिंग्स. उसके अलावा अगर कुछ सीख रहे हो तो फर्स्ट थिंग इज तुमको खुद से सीखना होता है. हाँ. एंड सिंस आई एम सेल्फ टॉट, माई एंटायर जर्नी हैज बीन सेल्फ लर्निंग. तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि या लाइक सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ टीचिंग टेक्स टाइम, बट यू नेवर मिस आउट ऑन डिटेल्स. जैसे बड़ी क्लास में तुम बैठे हो एंड देयर इज अ मैथ्स प्रॉब्लम, 10 जन में से 8 जन सॉल्व कर दी, तो अगेन वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. वो जो 2 जन बचे हैं उनको पर्सनली बैठ के सिखाएंगे, या फिर जस्ट दे लास्ट, मतलब स्कूल्स में होता है ना कि हाँ जस्ट यू नो एक्सप्लेन इट टू योर फ्रेंड, बहुत होता है आजकल. या फिर दे स्कोल्ड कि नहीं, हाँ वो गाली दे देंगे, मतलब गाली नहीं देते हैं, दे स्टार्ट स्कोल्डिंग एग्जैक्टली, कि हाँ टॉन्ट करेंगे कि इतने जन कर पाए तुमने क्यों नहीं किया. तो दैट इज़ देयर माइंडसेट. वो मेरे साथ स्कूल्स में बहुत होता था. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट अ स्कोल्डिंग. मैं प्रिंसिपल से भी बहुत सुना हूँ, फ्रॉम बोथ द स्कूल्स. लाइक आई डिड माई 10th इन ICSE स्कूल, आई डिड माई 12th इन CBSE स्कूल. तो मेरे को ना तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मेरे माइंड में तब से बैठ गया था कि मेरे को अकेडमी कुछ नहीं करना है. आई डोंट वांट अ 9 to 5. मेरे को आर्टिस्ट बनना है. आई जस्ट शो दैट ब्लडी वर्ल्ड आई कैन बिकम एन आर्टिस्ट. तो वो चीज़ है. एंड अगेन मैंने ये चीज़ इसलिए बोला कि सेल्फ टीचिंग इज़ योर बेस्ट टीचर, क्योंकि you get to learn everything, मतलब मैं बोल रहा हूँ everything, it's in capital letters. आप कुछ स्टार्ट करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, it's like hit and trial. तो जहाँ पे हिट होता है ना तुम वो सीख जाते हो, एंड जहाँ पे तुम ट्रायल करके फेल होते हो ना, that adds more of a learning. स्कूल में गलती, देखो पढ़ाई के टाइम गलती होता होगा, बट उतना उसके ऊपर एम्फेसिस कोई नहीं देता. लाइक I still learn a lot from myself, as in मान लो मैंने एक बड़ा स्टेज शो कर लिया. The recent one was Sunman campus I did in Orion Shishi University. तो हाँ देखो crowd response, okay ठीक है 10 on 10, this aspect 10 on 10, music 10 on 10. But again कुछ चीज़ें छूट जाता है. वो मेरे को that is my learning over there, कि अगले गिग में क्या नहीं करना है. एंड जो मतलब ऑफ कोर्स द थिंग्स दैट आर करेक्ट आप बार बार कर सकते हो, बट सेल्फ लर्निंग में एक चीज़ हमेशा दिखता है कि आगे तुमको क्या नहीं करना होता है. Instead of regretting, exactly, regret नहीं करना है. Once you start regretting, that learning mindset it diminishes, वो कम हो जाता है, उसको कम नहीं करना है. मेरा तो यही सजेशन है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि यू आर ट्रेंड, यू हैव दिस मेंटर, यू हैव दिस गुरु. मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, कोई गुरु नहीं था. मैंने देख के सीखा है, खुद से सीखा. लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन माई रूम एक्सपेरिमेंटिंग विद समथिंग और दी अदर. ब्लॉग्स पढ़ता रहता था इंटरनेट पे. आई यूज्ड टू चेक आउट यू नो जो भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनको मैं लेजेंड मानता हूँ, उनके वीडियोस देखता था मैं. मे बी इफ़ आई कम अक्रॉस देयर इंटरव्यू, उसको लूप पे देखता था, कौन से छोटे छोटे चीज़ पे वो एम्फेसिस डाल रहा है. तो सेल्फ लर्निंग मेरे हिसाब से, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, एक पॉइंट तक तुमको कोई सिखा सकता है या फिर देख के सीख सकते हो. एंड उसके बाद ना यू हैव टू ऐड योर ओन फ्लेवर टू इट. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज,
आपको कोई अगर कुछ सिखा रहा है, दैट इज अ नॉलेज यू आर गेटिंग. हाँ. वो नॉलेज को आप कैसे बाहर जाके शो कर रहे हो ना, दैट इज अ विजडम. लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. तो ये डिफरेंस को अगर समझ के इफ यू जस्ट स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स एंड ऑल द लिटिल थिंग्स, तो तुमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल गेट समवेयर. And like I would like to say कि मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ because for classical music I do have a guru, but for western music it's very different. And like ऐसे cases भी हुए बहुत बार कि like जब starting में वो whistle notes लेने का मतलब कोशिश करती थी and like high notes वो काफ़ी high होता है like उधर. तो मम्मी आके रूम में बोली चिल्ला क्यों रही है? So is there a problem? No, I was just शांत रहे. We are living in an apartment because that time I mentioned Rourkela, NIT Rourkela because I am from Rourkela. Oh. I just came to Bhubaneswar last year for 11th and 12th and BA Chandrasekhar. So mama be like कि यार हम लोग अभी apartment पे रह रहे हैं तो please थोड़ा शांति रखो. So see, there are some things that Indian parents नहीं समझेंगे. And no offense to Indian parents, I respect parents a lot. बट कुछ एस्पेक्ट ऐसा होता है ना, वो कभी समझ नहीं पाएंगे, वो चाह के भी नहीं समझ पाएंगे. नहीं, माई मॉम इज वेरी सपोर्टिव. देखो, सपोर्टिव इज वन थिंग, अंडरस्टैंडिंग इज अनदर थिंग. समझ रहे हो ना? सपोर्टिव एज इन कि उनको समझ आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, देन दे पुश यू. मेरे घर पे वो बहुत लेट आया, देन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड दैट थिंग केम नाउ. वो चीज मेरे ग्रेजुएशन के बाद आया. यार दैट टिपिकल इंडियन सोसाइटी की क्या कर रहा है, कुछ एक रियल, यू नीड टू डू समथिंग रियल. अभी जैसे यू प्ले रॉक म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ यू नो नॉट रॉक म्यूजिक, यू प्ले मेटल इन फ्रंट ऑफ इंडियन पेरेंट्स, उनको लगेगा क्या चिल्ला रहा है माइक पे. यस, मेटल यूज इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ग्राउलिंग एंड रोरिंग एंड लॉट ऑफ स्टफ. तो कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे. एंड देखो, जो लोग समझ रहे हैं वेल एंड गुड, तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं ना, वहाँ पे कोई गलत भी नहीं है. तुमको ऐसे अपना यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे कि उनको वो धीरे धीरे समझ आए, या तो नहीं भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इफ यू आर डूइंग इट, यू हैव टू डू इट विद अ होल हार्ट. आधा अधूरा करने से आजकल कुछ होता नहीं है. And I've seen that my mom is really trying hard to understand and like cope up with the like recent that Gen Z thing. Exact. देखो, Gen Z तो ठीक है, but like if Indian parents watch this podcast or listen to this, I would like to say कि no offense again, but parents के साथ ना हम पीछे नहीं जा सकते. We can't go back in time. They have to come with us to the future. तो ये सिंपल सा चीज़ जितना जल्दी समझ लेंगे, that's going to be easy for everyone. So my next question is like, how do you stay up to date? Because like with time लोगों का interest and ये सब change होता रहता है. So like how do you decide कि नहीं अभी इस टाइप का करना है, अभी इस टाइप का करना है, अभी next concert में I guess ये better रहेगा, this genre will be better. So how do you decide and how do you stay up to date? देखो, up to date रहने के ना बहुत तरीके हैं. And when people say, what do you call that? Work in silence, let your success make the noise. Staying silent and doing nothing are very different things. ये एक मूवी में, I guess, Karate Kid में जैकी चैन ने बोला था. Staying silent and doing nothing are very different things. तो अगर एक आर्टिस्ट ना अचानक से गायब हो जाता है, you should never think कि वो काम करना रोक दिया है. If he's in the market and he's working, that's fine. But if he's not in the market, he's working, he's giving double the efforts. एंड बहुत बार क्या होता है ना, 5 महीने पीछे जाओगे तो 5 साल आगे चले जाओगे. या लाइक ऑफकोर्स व्हेन यू स्टार्टेड आर्ट, आप अगर आर्टिस्ट बनने का सोच रहे हो, यू नेवर साइंड एनी MOU और एनीथिंग कि मेरे को इतना टाइम मार्केट में रहना है, देन इतना टाइम मेरे को डिसअपियर होना है. देयर इज नथिंग एज सच. यू हैव टू प्लान योर लाइफ, यू हैव टू प्लान योर जर्नी. तुमको कब, कहाँ पे, क्यों, कैसे, क्या करना है, यू नो. एंड माई वे ऑफ स्टेइंग अपडेटेड इज, सी द फर्स्ट थिंग इज इंटरनेट. आज के डेट में very easily accessible. Very easily accessible. But अभी देखो, everything has pros and cons. बहुत जन सिर्फ इंटरनेट को टाइम पास के लिए यूज करते हैं. And I've seen people, they just sit and scroll करते रहते हैं. Bro, just look at this guy. No, इसका blue tick नहीं था, इसका blue tick आ गया. Bro, इसका रील में इतना व्यूज हो गया. You know what they are missing out there? वो ये कभी नहीं सोचते इसका blue tick हुआ कैसे. If you have been following an artist and पता नहीं, मेरे को ब्लू टिक का अलग ही क्रेज चल रहा है आजकल. They think getting a blue tick is, हो गया, लाइफ का पर्पस तुम्हारा हो गया. You get what you wanted, you mint all the money you want, but
I don't think that works that way. So my way of staying updated is, I constantly listen to music. I have like हर आर्टिस्ट का ना there's another list of artists जिनको वो फॉलो करता है, उनका एक लिस्ट होता है जिसको वो फॉलो करता है. तो दैट इज़ हाउ आई स्टे अपडेटेड. सोशल मीडिया एक चीज़ हो गया. स्टेइंग अपडेटेड अगेन, आप लोगों को दिखाओगे नहीं आप अपडेटेड रहते हो. लाइक माई यूजुअल ट्रिक इज आई एक्ट डम्बेस्ट इन द रूम, ताकि लोगों को लगे इसको कुछ पता नहीं है, एंड देन दे स्टार्ट स्पिलिंग ऑल द बीन्स. एड़ा बन के पेड़ा खाओ. एग्जैक्टली. तो वो चीज़ है. तो स्टेइंग अपडेटेड इज दस 1001 ways. आप मार्केट में रह के भी आप अपडेटेड रह सकते हो, नहीं भी रह के अपडेटेड रह सकते हो. एंड यू टॉक्ड अबाउट हाउ डू दे पॉलिश द स्किल्स. जस्ट डूइंग द आर्ट फॉर्म ऑन द स्टेज या फिर जस्ट लर्निंग द आर्ट फॉर्म एंड परफॉर्मिंग वोंट मेक यू एन आर्टिस्ट. There's 1001 ways of it, more than 1000 things that you need to know before people start calling you an artist. अरे आर्टिस्ट तो आजकल खुद को कोई भी आर्टिस्ट बोल देगा, किसका इतना फॉलोअर्स हो गया, इतना व्यूज हो गया रील्स पे, दे जस्ट कॉल मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं इतना बड़ा. Doesn't work like that. There are people जिनका 1000 या फिर 2000 followers and they are really doing good in life as compared to वो लाखों करोड़ों वाले. तो वो चीज़ है. Staying updated is it's a very explain तो कर नहीं सकते उसको. You can stay updated from anywhere. You just need to pay attention. That's it. So like, what's the most rewarding thing about being a DJ and a beatboxer? See, both are art forms, but again, when I'm beatboxing, it's a different me. When I'm DJing, it's another different me. How do I explain this? जब आप बीटबॉक्सिंग कर रहे हो, दैट क्राउड उनको कुछ यूनिक लग सकता है. अरे शिट यार, ये मुंह से म्यूजिक बना रहा है, ओ शिट मैन, हाउ इज डूइंग दिस कूल, दिस क्रेजी. डीजेस मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ डीजेस. आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, नो डिफेमेशन टू एनीवन, बट अ लॉट ऑफ पीपल, उनको यही लगता है कि यू जस्ट गेट अ कंसोल, यू गेट अ कंट्रोलर, यू गेट अ लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, यू गो अप ऑन स्टेज, प्ले द सॉन्ग्स फॉर अ सर्टेन टाइम, यू बिकम अ डीजे. ऐसा नहीं होता है. मैं जब बीट बॉक्सिंग करता हूँ, आई यूजुअली प्रिपेयर अ सेट, उसको रूटीन्स बोलते हैं. एंड अगेन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द परफॉर्मेंस. 10 मिनट 15 मिनट मैक्स. आई रिमेंबर आई वेंट ऑन फॉर हाफ एन आवर इन अगेन वन ऑफ द कॉलेजेस इन ओडिशा ओनली. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग. बीट बॉक्सिंग करने के बाद, like after a beatboxing performance, of course, the usual thing, people come click pictures with you, and that's a legit good feeling. And they ask you आपने कैसे start किया वगैरह वगैरह. छोटा सा एक इंटरव्यू हो जाता है आपका वहाँ पे. And when I'm a DJ, वो मेरे को that feels more rewarding because crowd में इतने लोग नाच रहे हैं ना, so many people screaming, shouting, hooting, दैट समटाइम्स मेरे को स्टेज पे ही गूज़बम्स आ जाते हैं. एंड मैं कभी मैं कांप जाता हूँ कि वो मैं इतना सही कर रहा हूँ क्या. तो द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन फर्स्ट. दूसरा चीज़ है कि आपके सामने 100 लोग हो, 1000 लोग हो, यू आर कनेक्टिंग टू एवरीवन इन द क्राउड. अगर मतलब मान लो एक डीजे ना अगर एक 90 मिनट्स का सेट प्ले कर रहा है ना, एंड लोग अगर लास्ट को नाच के थक जाते हैं, they are all sweating and panting and oh shit man, इसने क्या बजाया, what a lovely set, what a banger set. That is rewarding. And I personally believe मेरा एक जूनियर है, he is also a DJ, his name is रोशन. तो उससे मैं बहुत बात करता हूँ ऐसे, we talk on such topics. तो उसने एक लाइन बोला मेरे को वहाँ पे कि ब्रो हर परफॉर्मेंस के बाद ना एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए. फिर मेरे को हिट किया कि बहुत सी चीज़ बोला है ये, बिकॉज सी वंस आई परफॉर्म आई गेट द मनी, पैसा आज है कल नहीं है, बट दैट इम्पैक्ट नो इट स्टेज. तो मान लो मैंने जनवरी में ओरायन में परफॉर्म किया, तो द नेक्स्ट ईयर पीपल आर गोइंग टू टॉक इफ आई लीव अ गुड इम्पैक्ट कि अरे लास्ट ईयर ऑडियंस लेव आया था, ही डिड दिस, ही डिड दैट एंड इट वाज अ क्रेजी शो. तो रिवॉर्ड्स कैन बी इन एनी फॉर्म, वो डिपेंड करता है आप कैसे परसीव कर रहे हो. So like to know a little bit more about you. Are you into like spiritualism and stuff? Yeah, of course. मैं पहले नहीं था. That again, like a lot of things are related to my dad's death.
बिकॉज तब मैं बच्चा था, तब मेरे को कुछ समझ नहीं आता था. आई डिडंट गेट ऑल दीज भगवान वाला स्टफ एंड मंदिर, ये वो, पावर, बिलीफ, फेथ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था. तो लाइक व्हेन डैड डाइड, मैं मम्मी को देखता था हॉस्पिटल में, वो बैठती रहती थी एंड वो प्रे करती रहती थी. वो मेरे को कभी भी पूछ भी लेती थी कि आज तूने प्रे किया कि नहीं, प्रे किया कि नहीं. आई वाज लाइक कि अरे मेडिसिन तो चल रहे हैं, प्रे करने से क्या हो जाएगा. एंड इन बिटवीन मेरे को इतना गंदा वो चीज़ आ गया था कि मैं मंदिर भी नहीं जाता था. लाइक व्हेन माय मॉम यूज्ड टू टेक मी टू टेम्पल्स, मैं बोलता था यार आप लोग यहाँ पे घुमाने आए हो कि मंदिर लेने आए हो. तो मेरे को लाइक कुड कॉल मी, व्हाट इज़ दैट वर्ड इन इंग्लिश, क्या बोलते हैं उसको, एथीस्ट. तो मैं था, वो एक टाइम पे मैं था. बट देन आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बैक देन. मेरे को समझ नहीं आता था लोग ये प्रे क्यों करते हैं, वाई डू दे, मतलब मंदिर भी जाते हैं फिर घर पे भी भगवान रखते हैं. मेरे को ये सब चीज़ समझ नहीं आता था. एंड आई यूज्ड टू स्टे पजल्ड, आई यूज्ड टू स्टे कंफ्यूज्ड. तो आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे मेरे को गुरुदेव मिले, श्री रविशंकर जी. लाइक इज एन अमेजिंग पर्सन, आई मेट हिम इन पर्सन. एंड उनसे मिलने के बाद आफ्टर आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम, the way he talks, the way he answers your questions relating to all the little things in life. तो मेरा कहाँ से पता नहीं धीरे धीरे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा कि it's not necessary to be that one person always or have that one mindset always. You can still switch your mindset, because you are not harming anyone over there. You are not harming the people around you or the surroundings around you. No one. अगर तुम कुछ कर रहे हो अपने बेटरमेंट के लिए ही करोगे. ये सब चीज़ मेरे को खुद से रियलाइज़ होने लगा. लाइक एज आई सेड, आई हैड नो मेंटर. मेरा लाइफ में ऐसा कोई था नहीं कि मैं ऐसे बैठ के बात करूँ. आई हैड नो वन. आई हैड अ बंच ऑफ फ्रेंड्स एंड अगेन आर्टिस्ट बनने के बाद समहाउ दे जस्ट वो ऐसे कट ऑफ हो गए थे. तो मेरे को वो चीज़ भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता था. वंस आई मेट गुरुदेव, आई स्टार्टेड फिर से आई स्टार्टेड बिलीविंग एंड नाउ आई एम अ वेरी हार्डकोर शिवा भक्त. महादेव का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ अभी. एंड अभी खुद से कभी कभी मंदिर जाता हूँ मैं. तो या आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी. आई प्रे राइट नाउ. प्रे इवन व्हेन थिंग्स आर गोइंग गुड. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. सिर्फ ख़राब टाइम पे क्यों याद करना है भगवान को. तो वो चीज़ है. आई मेडिटेट एंड आई लिसन टू सम स्पिरिचुअल सॉन्ग्स एंड सो या राइट नाउ आई एम इन स्पिरिचुअलिटी. Actual question, because there's a difference between being spiritual and being religious. रिलीजन्स का मेरे को कुछ समझ नहीं आता है. I never understand that. In India में that is the only agenda. That is the only agenda. There's this web series Sacred Games. वहाँ पे नवाजुद्दीन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, गणेश गायतोंडे, there's this very line, वो अभी तक मेरे को याद है. वो बोलता है कि भारत में सबसे बड़ा धंधा है धर्म का धंधा. भगवान के नाम पे लोग आजकल कुछ भी करते हैं. एंड जो लोग को उतना नॉलेज नहीं है, द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे फॉल फॉर ऑल द ट्रैप्स. तो आई एम मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ना वो अकेले ही होता है. आप किसी का हाथ पकड़े चल स्पिरिचुअल बन जा, नहीं होता ऐसे. तो आई एम मोर ऑफ इनटू स्पिरिचुअलिटी. रिलीजियस वगैरह मेरे को उतना पता नहीं चलता बिकॉज आई लिसन टू मुस्लिम सिंगर्स. मैं उनके गाने भी सुनता हूँ. तो वहाँ पे अगर मैं रिलीजियस होता ना, हाँ, तो वो मैं नहीं करता. वो नहीं करता. एक आर्टिस्ट का भी धर्म नहीं देखता. Exactly. Again, that is one key element when you are an artist. And artist का personality बोलता है. तो वो चीज़ हो. But I'm not going off track, and I don't want to offend any religion, but I think Sanatan Dharma, like it's not a religion exactly, it's a way of living life. True. It's a set of rule to live a peaceful life, I think. So like it's not exactly religion, but I think it's a way to lead someone to spiritualism and to the path of salvation. So I think we are including the name of India कि इंडिया में धंधा होता है, but I think there are other दूसरी कंट्रीज में भी होता है. Yeah, I just hit that line again because मेरे को डायलॉग याद आ गया था.
sacred games वाला. So that is the only reason I said that. Yeah. And what you said, it's actually a lifestyle. जैसे मैं हिंदू हूँ, but मैं बुद्धिज्म के प्रिंसिपल ज़्यादा फॉलो करता हूँ. हाँ. I have statues of Buddha in my home. Exactly. Pictures of Buddha in my home. Whatever pleases you. Exactly. And वहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता ये जो लोग झगड़े कर लेते हैं ना कि this 10 group of Muslims, हाँ. तो या फिर 10 group of Hindus at a Muslim. समझ नहीं आता वहाँ पे एजेंडा क्या है. Exactly. I just don't get that thing. Right. मेरे को समझ नहीं आता है. And if I'm believing in something and it's not causing harm मतलब in any way to anyone else out there, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता. Exactly. लेकिन मार पीट के किसी को कन्वर्ट करना एंड ये करना, that is. I to stay out of all that. Pointing in see that discussion is endless. Exactly. It's my choice. What? Exactly. तो अगर कोई कन्वर्ट भी हो रहा है, they have their own reasons. And किसी इंसान के लाइफ के उस एस्पेक्ट में ना ही घुसो तो अच्छा है. बिकॉज तुम उनको किस नज़र से देखते हो ना वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा. समवेयर आई फील दैट इज द लाइन यू शुड नॉट क्रॉस व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीवन. या फिर मतलब मान लो ऐसे कोई फ्रेंड के साथ चिल कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्ट आस्किंग हिम अबाउट, मतलब मान लो आई हैव दिस मुस्लिम फ्रेंड, मैं उसको ऐसे मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता हूँ कि ब्रो तू मुस्लिम क्यों है, व्हाई कांट यू जस्ट बी अ हिंदू, ब्रो हिंदुइज्म में ये चीज़ अच्छा है, मुस्लिम में वो चीज़ अच्छा नहीं है, फलाना ढिमकाना. आई नेवर डू दैट एंड आई सजेस्ट किसी को करना भी नहीं चाहिए. लेट एवरी इंडिविजुअल बी एज दे आर. जब तक वो किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द सोसाइटी, द पीपल अराउंड देम, बस जस्ट लेट देम बी. नो, एज सिंपल एज दैट. I remember when I was in class, I guess 3 or 4 maybe, I used to like go to drawing classes and all. There was a girl sitting beside me named Amitabh something, I guess. I didn't remember her name. The first thing she asked was like, she didn't say that her name was Amitabh. We like by mistake our pencil boxes got exchanged. So she looked at me and said, "You're a Hindu, right?" I was like, yeah. तो guess कर मैं कौन से religion के हूँ? I was like, Hindu? So like, no, Christian. मैं बोली, oh great, okay. मेरा sorry बोलता तुम्हारा नाम क्या है? That was the second question. So like guys, I still have that thing in my memory. देखो तुम तो क्लास 3 में थे ना, क्लास 3 में सब बच्चे होते हैं, तो that does not have that much of importance, I guess. अभी अगर तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे, that might hurt your sentiments, that might hurt your feelings, but बचपन में तो कोई कुछ भी करता था. कुछ भी, राइट. बट स्टिल वो आपके मतलब सराउंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप कैसी बातें करते हो एंड व्हाट इज योर माइंडसेट. लाइक बचपन में, फिर बाद में बड़े होके सी देखो बहुत जन ना बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, एंड दिस इज अ प्रूवन एविडेंट फैक्ट कि मैच्योरिटी वोंट कम विद योर एज, जस्ट कम्स विद एक्सपीरियंस. तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई डोंट नो हाउ वुड आई हैव परसीव्ड, या फिर और कोई भी अगर तुम्हारी जगह होता वो कैसे परसीव करता वो क्वेश्चन, वो सिचुएशन को. मतलब मेरे को अगर कोई ऐसा पूछता मैं तो हंस के उड़ा देता था, अरे क्या बात कर रहा है वो, चक इट. नो, एग्जैक्टली. एंड आई एम नेवर पार्ट ऑफ एनी सच कॉन्वर्सेशंस. ये रिलीजन को लेके, इसको लेके, उसको लेके मैं उतना डीप डिस्कशन कभी किया ही नहीं. बिकॉज वहाँ पे पीपल आर वेटिंग कि तुम कुछ गलत बोलोगे तो जस्ट काउंटर यू विद दैट. राइट. कंट्रोवर्सी तो ऐसे चिपके होकर खेलना है. आई जस्ट डोंट वांट दैट. राइट. तो like next superstitions. Do you believe in superstitions? Like क्योंकि हमारे like country में ना काफ़ी superstitions है, and like growing up हम लोग तो सुन के कान पक जाते हैं बात पे, अरे ऐसे मत करना ऐसे. तो have you faced such things and like आप इतना बाहर travel करते रहते हो, so like बिल्ली ने रास्ता काट दिया, दिन खराब, ऐसे कभी? देखो that is a very sensitive situation. अभी पता है वहाँ पे बिल्ली नहीं आता, मान लो you just go out and उस दिन शाम को तुम्हारे you have to go somewhere, you have to, let's say you go playing badminton and तुमको चोट लग जाता है, तो तुमको चोट लग रहा है, you accept the fact. बट अगर आज दिन बट you live in the superstition कि बिल्ली काटने से कुछ गंदा होता है, तो तुम सारा दोष बिल्ली पे डालोगे ना. बट if the cat never crossed your path and you got hurt believing in that thing कि बिल्ली क्रॉस करने से ही होता है, तब तुम कहाँ पे दोष डालोगे? Don't believe in things that don't exist. Very simple. Don't believe in things. Don't follow such people जो ऐसे चीजें spread करते हैं. Just don't. You're playing with your own mind.
and you are letting them spread that negativity. बहुत लोग आज भी मानते हैं बिल्ली काट के जाना अशुभ होता है, काली बिल्ली काट के जाना बहुत अशुभ होता है. I don't believe that बिल्ली वाला thing, but I myself am just too much superstitious, and it's too hard for me to get out of it. Surround yourself with the right people. Yeah, like जो मतलब बना जो पहले से है जो superstitions, बस वो नहीं, मैं खुद भी मन में कुछ बना के नहीं अभी मुड़ के देखती हूँ, वरना आज ये वाला ड्रेस कल पहन के गई थी अच्छा गया था, आज भी यही रिपीट कर लेती. So that thing like दिमाग में बैठ गया है. वैसा बिलीफ होता है, you can't call them superstitions. जैसे I have some beliefs कि there's a certain pair of shoes I wear at very special events. तो उसको सुपरस्टिशन नहीं बोल सकते ना. दैट इज माई बिलीफ. एंड हर आर्टिस्ट के लाइफ में ना वी एक्चुअली बिलीव इन लक, ऑल्दो इट्स अ वेरी लेस परसेंटेज आउट ऑफ 100. लक में तो हम विश्वास करते हैं ना. तो अगर मान लो मैं शो पे जा रहा हूँ, आई टेल माई मॉम, मामा मुझे लाइक जस्ट वॉश दो शूज़, मैं वो पहन के जाऊँगा बिकॉज दोज आर माई गुड लक शूज़. तो अगर भी मैं वो नहीं पहन के जाता हूँ तो मेरे मन में थोड़ा खोट रह जाएगा कि अरे यार ये मेरा गुड लक शूज़ था, मैं नहीं पहन पाया. बट दैट इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन. सुपरस्टिशन इज जो तुम कभी फेस नहीं किए हो, दूसरों के बोलने पे तुम यकीन करना स्टार्ट कर दिए हो, दैट इज अ सुपरस्टिशन. जैसे इंडिया में there's this very weird superstition, if a pregnant woman sees a cobra, the woman goes blind. Yeah, there's this superstition in India. मेरे को समझ नहीं आता ये सब. Actually fun. Yeah, but like these are very sensitive things because spiritual things exist. The universe exists. There's a supreme power who's watching over us, making things happen. कुछ ना कुछ तो exist करता है. But again, there's this section of people जो उसको dilute करके ये सब चीजें लाए हैं. So that's my take on superstitions. Okay, I have a list of superstitions, like a few, like 7 superstitions. So I just want to give a comment on each one of it. Okay. So the first one is knocking on wood. Like we do that na touch wood. Like कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा बोला तो हाँ यार ये हो जाए touch wood. Touch wood is not अच्छा होने वाला है. Touch wood is कि नजर ना लगे. नहीं अच्छा होने वाला भी यार हो जाए ठीक है touch wood. ये भी मैंने सुना है भाई. ये एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ है कि लाइक ये एक्चुअली आया था, मतलब मैंने जो रिसर्च किया उधर से मैं बोल रही हूँ कि knocking the wood means calling a spirit to either protect you, or if the spirit is an evil spirit, then you knock on the wood which is his house, I guess, then it will just go away. तो उधर से वो मतलब रिवॉल्यूशन हो के आ गया टच वुड. Is there any scientific proof? No, I don't know. मेरे को नहीं पता बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी टच वुड करते हैं, एंड इवन आई डू इट एट टाइम्स. लाइक बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तो बस तसल्ली के लिए बोल दिया टच वुड ब्रो, लेट दिस थिंग हैपन. नेवर टेक इट ऑन दैट लेवल कि डिबेट बन जाए. सिंपल. I just want you to comment on it something. Okay. Next one is throwing salt on shoulder. ये कभी नहीं किया मैंने, मेरे को इसके बारे में पता है. जो like evil spirits आते हैं उन लोग को भूत पकड़ लिया बोलते हैं ना, तो पता नहीं sprinkling salt. जब भूत पकड़ेगा तो मैं देखता है. पापा इज लेट ऑन. Then is broken mirror. टूटे हुए शीशे में नहीं देखना चाहिए. देखो मेरे घर पे टूटे शीशे हैं नहीं, एंड मेरे को जितना लगता है ना टूटे शीशों में देखोगे तो खुद का चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा. दैट्स इट. शीशा टूटा चेहरा थोड़ी टूट जाएगा. बट सम पीपल स्टिल बिलीव जैसे रुकी हुई घड़ी को ऐसे फेस डाउन करके रखना चाहिए. नॉट ओनली शीशा, टूटे हुए कुछ भी ग्लास की चीज़ें हैं घर में उसको फेंक देना चाहिए. They are from another generation. हमारे belief उनके beliefs we can't come here, never. उनका Always like this. हाँ, उनके रूम का वॉच ऐसे या फिर क्लॉक ऐसे बंद हो गया होता है ना, तो वो बोलती है बेटा जल्दी बैटरी ले आओ और उससे तब तक बैटरी लाने तक उसे निकाल के नीचे रख दो. अभी the entire universe functions on time ना. Yeah. तो कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है या फिर they have avoid this या फिर इनके दिमाग में डाला गया है टाइम रुक जाता है तो तुम्हारा पूरा टाइम स्टार्टिंग होता है. हाँ. तो अगेन मैं क्या बोला था, डोंट बिलीव इन एनी सच थिंग दैट हैज नेवर हैपेंड टू यू. अब मेरे को कभी भूत पकड़ा नहीं है.
एंड जिसको भूत पकड़ा भी होता है, भूत छुड़वाने के बाद भी उसको इफ यू आस्क ब्रो तेरे को भूत कब पकड़ा, वो बोल नहीं पाएगा ना। वो कैसे बोलेगा? मान लो तुम यहाँ से घर जा रहे हो, लाइक गॉड फॉरबिड दिस शुड नॉट हैपन, तुम जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ घुस गया एंड वो फिर निकल गया। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आस्क यू, अरे तेरे को भूत पकड़ा था ना, कब पकड़ा था, पकड़ के क्या किया तूने, नहीं होगा ना। तो सिंपल, मैं जब तक मेरे साथ नहीं हुआ आई वोंट कमेंट। हाँ भाई, I don't know, but like I am the number one डरपोक, and घर में everybody is able to scare me. If देखो, there's this movie, I don't know if you have watched, Ghost Rider. वहाँ पे पता है वो मूवी पे एक चीज बहुत रिपीट करता रहता है, यू कांट लिव इन फियर। डर के रहो। सी, आई बिलीव इन एनर्जीज, एनर्जीज आर कॉन्टेजियस। अभी ऐसे तुम बोल रहे हो डरपोक, योर सबकॉन्शियस माइंड इज गोइंग टू टेल इट टू यू ऑल द टाइम कि तू डरपोक है। right, and ना like सबसे like scary thing is कि I do believe in that subconscious thing, and ये बैठ जाएगा ना तो like आपके सामने अगर कुछ ना भी होना तो ज़बरदस्ती माइंड will मतलब क्या try to play with you कि हाँ कुछ एक गया सामने से। You have to like control your mind, Isha. right, तो like वहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। वही सुपरस्टिशंस खुद बनाया हो तो खुद उनको डिच भी करना पड़ेगा। वही, ये सुपरस्टिशन के बाद I was about to ask you the questions on paranormal activities. Johnny English, it's Rowan Atkinson का, it's a super comedy thriller action movie. उसके part 2 के in the very first scene he has gone to Tibet in order to attain mental peace and salvation and blah blah blah. तो वहाँ पे उसका मास्टर उसको बोलता है mind must be master of the body, which is very true. And बहुत सारे लोग ये अनलॉक कर भी देते हैं. They do extreme medical, not medical actually, exactly, meditational practices. They do all spiritual practices. तो कहीं ना कहीं लोग अनलॉक कर दिए हैं ना. That's the thing. Right. Okay, superstitions बाकी था. Number 4, lucky penny या फिर coin. Like वो जो कहीं आपको सिक्का मिल जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मेरे को नहीं पता कि मेरे को गिरा हुआ पैसा मिलता है तो मैं पूछता हूँ भाई किसका गिरा है क्या. That is my usual thing that I do. बाकी I don't know. And since you mentioned lucky penny, आप trains में जाते हो and even in the traffic signals you stop and the transgender people come down, तो बोलते हैं कि उनका दिया हुआ सिक्का it's a good luck, there's blessing in that. तो yes, I believe in that thing because transgenders are actually powerful people. दुआएं देते तो काम भी करता है, दुआएं नहीं भी देते तो भी नहीं होता है. ओके, देन इच्ची पाम्स बोलते हैं ना कि लाइक ये हाथ खुजली होने से पैसा आने वाला है. ये मेरे कुछ फ्रेंड्स मांगते हैं. एंड लाइक हाथ में से तिल हो तो भी पैसा आता है. तो I don't have तिल पैसे आने. Sure thing. देन ओके, ब्लैक कैट वाला तो ख़त्म हो गया. और एक ड्रीम्स बोलते हैं कि ड्रीम्स कभी कभी आपको याद रह जाए तो लाइक मे बी इट्स अ मैसेज फ्रॉम एन एंजल और अ डेविल. This I firmly believe in. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है ड्रीम्स आर जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ हम लोग आगे जाके क्या करने वाले हैं या फिर हमारे साथ क्या होने वाला है. इफ इट्स अ बैड ड्रीम देन पता नहीं मेरे को, वी जस्ट प्रे दैट वो टाइम ना आए. बट इफ इट्स अ गुड ड्रीम यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड आई फर्मली बिलीव, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब अजीब ऐसे ड्रीम्स आते रहते हैं. कहीं पे कोई भगा रहा है मेरे को, कहीं पे आई एम स्टैंडिंग इन अ स्टेज एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी. जाना है अपने पैसे कुछ. हाँ मतलब ऑफ कोर्स, बट या आई बिलीव इन ड्रीम्स. यस आई डू. ड्रीम बता देने से किसी को कि लाइक जो ड्रीम तो वो सच नहीं होता है. अच्छा. हाँ आई डोंट नो. लाइक खराब ड्रीम होता है ना तो मम्मी बोलती है कि जाके भगवान को बोल देना सच नहीं होगा फिर. हाँ, सी अगेन पीपल हैव डिफरेंट वेज टू टैकल सच सिचुएशंस. अभी यहाँ पे हम ऐसे कमेंट या फिर टैग नहीं मार सकते ना, तू अंधविश्वासी है, तू ऐसा है. It's just people's way of dealing with those things, and everyone has a different approach, has a different perspective. That's it. Okay, so I think I'll have to end the conversation, but okay. I really had a good time with you, and I wish we could stretch it a bit longer. Stretch it, I don't. 10-15 minutes I can. Yeah, right. Okay. But I don't have any questions left. See, this is where the viewers still come to Zen.
ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? मैं ऑन द स्पॉट पे पूछ रही थी, सीरियसली आई डोंट हैव लाइक, हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे बट आई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो या ऑफ कोर्स आपने बोल दिया ना कि लाइक आई डोंट बिलीव इन सच स्टफ्स एंड ओके क्या तो टेल मी सम, तो आपने तो बोला कि यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑन सच एक्टिविटीज़, तो फिर भी कुछ सुना होगा या फिर कभी तो लाइक डर लगा होगा? माई फ्रेंड्स हैव एक्सपीरियंस्ड, या माई फ्रेंड्स हैव एक्सपीरियंस्ड एंड एक बार क्या हुआ था ना, हम लोग कोरापुट गए थे, दिस इज 2021 नवंबर दिसंबर के अराउंड, तो वी वर 8 people एंड इट वाज अ वेरी फुल फ्लेज्ड प्लान दैट भुवनेश्वर से हम कोरापुट राइड करके जाएंगे ऑन 2 wheelers. तो वी रीच कोरापुट, वी चेकड इन दी होटल्स एंड अगले दिन हमारा जाना था वहाँ पे. देयर इज वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट्स कॉल्ड डुडुमा वाटरफॉल्स. तो वहाँ पे लोकल्स बोलते हैं कि दैट प्लेस इज यू नो इनहैबिटेड बाय नक्सल्स एंड स्टफ बिकॉज यू हैव टू गो वाया रायगढ़. बरहमपुर से अगर आप जाओगे तो आपको उधर से जाना पड़ेगा. एंड दैट रूट स्पेशली फ्रॉम वी वर नॉट एग्जैक्टली इन कोरापुट पे लाइक इन दैट प्लेस देयर इज वन प्लेस सेमिलीगुड़ा. From there, you go to Devmali, that hilltop, and you go to the waterfalls. It's all nearby only. So somehow the Semiliguda is the central part of the place there. तो हम लोग जा रहे थे and हमारा plan था कि and when we saw such large trees and you know jungles and it was just a narrow road, no street lights, no police stations, no petrol pumps, एक या दो गिन चुन के दुकानें. तो हमने ऐसा प्लान किया कि एंड ऑफ कोर्स हमने सुन भी रखा था कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है. तो वी वेंट, तब दिन का टाइम था, वी क्लिक पिक्चर्स एंड रात आते टाइम यू नो इट वाज लाइक पास्ट सनसेट एंड हम लोग आ रहे थे. तो एक पार्ट ऑफ द रूट इट वाज वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ रोड. तो मेरे पीछे एक मेरा दोस्त बैठा था एंड आई रिमेंबर हमारे साथ एक भैया थे, अरिजीत भाई नाम है उनका. ही वॉज रियली अ गुड पार्ट ऑफ द ग्रुप बैक देन. तो फॉर सम रीजन आई डोंट नो ही वांटेड टू राइड अलोन या फिर कुछ तो ऐसे वहाँ पे हुआ था, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली. वो अकेले चला रहे थे एंड हमारा ये प्लान था कि वी वोंट राइड पैरेलल, वी विल राइड लाइक दिस, वन बाइक here, वन बाइक here, वन बाइक here, वन बाइक here, एंड ऐसे राइड करना है कि सब दिखे, लाइक ईच वन शुड बी विजिबल टू ईच वन. मतलब पीछे मुड़ने पे भी अपना वो बंदा दिखना चाहिए, सामने वो बंदा दिखना चाहिए, कोई आउट ऑफ विजिबिलिटी रेंज नहीं जाना चाहिए. तो द फर्स्ट 3 of us हम लोग सही जा रहे थे. अरिजीत भाई का बाइक सबसे पीछे आ रहा था. वी वॉज ऑन दिस रॉयल एनफील्ड एंड हम तीनों का स्पीड सेम रहता था एंड फॉर सम रीज़न ही वॉज स्लोइंग डाउन. अचानक से ही वॉज आउट ऑफ साइट. तो हम लोगों का तो थोड़ा फटा वहाँ पे बिकॉज कोई लोकल्स नहीं थे, कुछ नहीं था एंड दैट प्लेस वॉज इनहैबिटेड बाय नक्सल्स. तो वी वर एक्चुअली पजल्ड. हम लोग आ रहे थे एंड हम लोग रुक गए एंड हाँ हम लोग एक जगह पे ऐसे ही वेट करने लगे एंड मेरे दोस्त इतने थक गए थे, कुछ ऐसे नीचे बैठ गए थे. तो आफ्टर सम टाइम अराउंड लेट्स से 5-10 minutes हमको एक लाइट दिखा एंड वी वर श्योर कि अरिजीत भाई है. तो ही केम अक्रॉस एंड आई डोंट नो, ये बहुत ऐसे हड़बड़ी में हुआ वाला कॉन्वर्सेशन था बट हमने ऐसे पूछा, अरे अरिजीत भाई स्लो कहेंगे, व्हाट वाज द मैटर, क्या हुआ, बाइक तो रुक नहीं गया. बाइक वाज फाइन, देयर वाज पेट्रोल इन द टैंक एंड वो बोले कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना मेरे सीट के पीछे बैठ के कोई मेरा गला खींच रहा है, समवन इज पुलिंग मी फ्रॉम लाइक दिस. तो दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस दैट ही हैड. तो वहाँ से देन टिल दी होटल हमने वी स्लोड डाउन आवर स्पीड्स एंड हमने बोला अरिजीत भाई आप आगे आगे जाओ. So this was one experience, I guess. Like there's a lot of other experiences also. I firmly believe in this thing. You can't live in fear. मेरे को मतलब कुछ चीज़ों से ऐसे मतलब somehow I don't know. I stopped fearing a lot of things. जो पहले मेरे साथ होता था, मैं डरता था जिस चीज़ों से, अभी नहीं डरता मैं. तो I still remember. When I was in Sri University and वहाँ से जो रोड मेरे घर तक आता है, back then like it's around 3-4 years back, मैं second year में था एंड
I used to travel by my two-wheeler. तो कॉलेज में I was this very active guy in the cultural and sports वाला डिपार्टमेंट. तो कभी कभी ऐसा होता था, मैं कॉलेज से आता था रात के 10 बजे 11 बजे मैं निकलूँगा वहाँ से. We have the college at a very deserted location. अभी तो फिलहाल बहुत डेवलप हो गया है. तो while coming from there, it's all blackout. There's no street lights. There's only few shops and everything is shut down. वहाँ से till नंदनकानन चक कोई लाइट्स नहीं होते थे. नंदनकानन के बाद से you had this usual street lights. तो बहुत बार मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे पूछते थे, अरे अनिर्बन, अरे ऑडियो तू इतना लेट को जाता है यहाँ से, तेरे को कोई ऐसा मतलब डर नहीं लगता, लाइक आई नॉट स्क्वायर तो डार्क एंड नहीं है सच. तो मैं वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था, मैं मना कर देता था. लाइक नो, आई एम डूइंग फाइन, अभी तक तो सही चल रहा हूँ. Staring to mind. आई डोंट नो, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंट्रोल योर माइंड. लाइक आप डिस्कस नहीं करते कि इनको फिर बस बातें नहीं था. लाइक जिसके साथ हुआ है वही सबसे बेस्ट पोर्ट्रे कर सकता है ना. जिसके साथ नहीं हुआ है, there's two things. Either you wait कि तुम्हारे साथ हो, अगर नहीं हुआ है then just keep moving forward in life. जब होना होगा हो जाएगा ना. लाइक paranormal activities is just another part जो लोग बहुत हाइप अप करके रखे हैं. होते होंगे, नहीं होते होंगे. There's videos on YouTube, ये भूत यहाँ पे दिखा, वो भूत वहाँ पे दिखा. 2023 में anything is possible if you post process it, if you edit it. तो व्यूअर कैसे यकीन करे वही भूत है. Some people say spirits कैमरे में नहीं दिखते. There's a lot of self-contradictory statements made by a lot of people. तो बस वही चीज़ है. Keep it simple. That's it. Guys, this is Shreyansh, Jena and Siddhant Tripathi joining us. Hi. What kind of events do you get hired the most? Like, is it some pub areas or like big concerts or universities? So exactly what kind of events you get hired? See, right now I get most of the college events, the college fests, because मैंने मेरा crowd वहीं पे ढूंढ के रखा है. It's the youth. They can relate and there is some segment of songs जो मैं हमेशा play करता हूँ in every set. Like I don't repeat the entire playlist, but होता है ना evergreen. वो हर क्राउड को टच कर जाता है. तो आई बिलीव इन लिविंग एन इम्पैक्ट ओवर देयर. तो कॉलेज फेस्ट आर माई फोटे अभी के लिए. बाकी आई सजेस्ट कि इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, जस्ट वन स्किल वोंट सफाइस. यू हैव टू बी वर्सेटाइल. जितना वर्सेटाइल हो जाओगे उतना देर मार्केट में तुम लोग टिक जाओगे. दैट्स वन थिंग. I have seen you perform a lot of these in a cafes, clubs and recently a lot of places. And I work with a lot of artists, so, such as even the beatboxer, she is a singer. And how do they get their first gig? Like, they're just getting started. They have not performed anywhere previous. Like, how do they get their first gig? See, the first gig can come in any form. You have to be ready for all times. मान लो तुम किसी शादी में जाकर रिसेप्शन में खाना खा रहे हो. There's this guy comes up to you and नॉर्मल सा रैंडम सा कॉन्वर्सेशन होता है. You start telling कि I'm an artist, I do this, I do that. And वो फैसिनेट हो जाता है वहाँ पे. तो he takes down your number and तुमको कॉल करता है. बट वहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता कि वो गिग तुमको ही मिलेगा. See, what usually happens in the market is if I am quoting something around for 90 minutes, I'll quote around 40-50K. तो वो ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? 40-50K के सेगमेंट में वो बहुत जन को फ़ोन लगा देगा. Then he narrows down to 3 or 4 people. वहाँ पे वो क्या करेगा? He just find that one USP. कौन सा बंदा रखेंगे तो क्राउड को केटर कर पाएगा. तो गेटिंग योर फर्स्ट गिग इज द मोस्ट अनसर्टन थिंग एज एन आर्टिस्ट. तुमको कभी पता नहीं होगा. यू माइट वांट टू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फ्री शोज. जैसे आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट 6 months to 8 months बिफोर आई बिकम अ फुल प्रोफेशनल, मैं खुद से जाके पिच करता था कि सी आई एम दिस माई प्रोफाइल, आई बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. इफ यू गाइज हैव अ स्लॉट दिस फ्राइडे, दिस सैटरडे इन द इवनिंग, इतना टाइम से इतना टाइम, लाइक इफ यू वुड लव टू हैव मी, आई नॉट डिसअपॉइंट द क्राउड. ऐसे ऐसे करके यू हैव टू मार्केट योर सेल्फ. तुमको खुद को यू हैव टू सेल योर आर्ट. तुम वहाँ पे खुद का आर्ट फॉर्म को ऐसा बेचोगे कि दैट इज़ द बेस्ट पिच. देन यू नो यूजुअली कम्स डाउन टू दैट साइकिल.
अभी जैसे मैं कॉलेज में आके परफॉर्म कर लिया, वहाँ पे there's not only the audience, वहाँ पे दूसरे इवेंट वाले भी हैं, दूसरे कॉलेज वाले भी हैं. Like I get most of my gigs like that only. शीशी यूनिवर्सिटी के बाद से the next university was NIT राउरकेला. And before SSU I was at XIMB. I went to XIMB twice. Then US की ईव पे I was at स्वस्ति प्रीमियम. तो गुड वर्ड ऑफ माउथ घूमता रहता है कि ये वाला आर्टिस्ट आया था, ये ऐसे करके गया है, कुछ तो है बात इसमें. And about that first gig, I'll make it a tricky situation. Think of every show as your first gig. Very simple. Think of every show as your first gig. Bas, that's it. I also want to ask one more thing. How do we network with more music artists? Suppose a singer is performing or who's coming to the town. Should we reach out to them if we can open their concert or not? Do you think it's worth to open in another famous singer's concert or something? See, publicity, not for getting paid, but in terms of publicity, do you think it's... See, that entire publicity thing, no, it's going to be a very lonely ride. What I said, खुद जाके pitch करना है. If those event organizers think you are fit enough to open for this artist, तो ही हो सकता है. Because I never did that and I won't suggest कि कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है जाके खुद ही बात कलर में हमको ओपन करने दो. Don't do that. वहाँ पे उनको तुम्हारा desperation दिख जाएगा. You get what I'm saying? तो getting your first gig is a very tricky situation. You have to push yourself till that much जब तक तुम limelight में नहीं आते. Once you're in the limelight, even if you take a month or two off, लोग तुमको भूलेंगे नहीं. Still remember we want this artist, he's there. We want that artist, he's there. अभी जैसे for example, not relating to this, but just an example so you can relate to what I said is Bassi, Anubhav Singh Bassi, that he's a comic actually. अभी he got this role in that movie, रणवीर कपूर का movie, right? तू झूठी मैं मक्कार. उसके बाद लोग उसको एक्टर बोलेंगे क्या? नहीं, he'll still be a comic. That's what I'm saying. First gig is very tricky. It's very tricky. क्योंकि अगर अभी मैं बैठूंगा ना, मेरा फर्स्ट गिग मेरे को याद है पुरी में एक हिप हॉप डांस बैटल हो रहा था in 2017, the beginning of 2017. मैं वो फ्लायर देख के I just called on that number. हर फ्लायर में एक नंबर होता है ना कि if you want more details reach out blah blah blah. I just called on that number. मैं बोला कि I'm a beatboxer and I come from Odisha. So could you just have 10-15 minutes of leeway time so that I can just slip in and perform? तो वहाँ पे हाँ बोल दिया. And once I reached there, मेरे को दिखा ये बहुत बड़ा crowd है. I need to do something else. And बहुत बार क्या होता है ना, फर्स्ट गिग में तुम सोच के कुछ जाते हो, once you reach there तुमको कुछ अलग करना ही पड़ेगा. It has to be out of the box. So from the first gig you start getting gigs. अभी till the first gig you can judge yourself. आज मैंने कितना practice time डाला है, आज मैंने क्या किया है, and what you said about networking. Once you're in the limelight, networking happens on its own. People reach you through Instagram या फिर एक तो आर्टिस्ट लोगों के नंबर कभी रहते नहीं प्राइवेट, कहीं ना कहीं से मेरा नंबर कहीं भी मिल जाता है. When he texted me I was surprised. मैंने लाइक ओके राकेश सर एंड चलो ठीक है लेजिट सोर्स. तो वो चीज़ है. तो the first gig is always tricky. It's always tricky because imagine you guys are मतलब swimming in an ocean and तुम लोग मछली हो. तो एक चीज़ को काटने के लिए ना वो समंदर में there's so many मछलीज you can't count. You're getting what I'm saying? Getting that first gig, it has to be very important if you see yourself, if you see your life in that art form that you're doing. And once you reach a certain level, दूसरा कुछ सीखना स्टार्ट कर दो. Have one core, अपने साइड में रखो बहुत कुछ. Like a lot of people know me just as an artist, but I have a lot of downtime hobbies. I build personalized gaming computers. I restore antique vehicles. मैं ये सब चीज़ भी करता हूँ. Surviving with just one skill in today's industry, in today's generation, it's impossible. Unless you are some nuclear or some AR Rahman, तो नहीं होगा. That's it. So for the talking with you, thank you so much for being for the Astrix Show. We are a giver now. Thank you so much, you guys are most welcome. Yes, so thank you. Most welcome. And I hope we'll meet soon again. Yeah, sure. Thank you so much.